already we have sold 2.37 lakh metric tons as of 28 January 2024, which means the subsidized, easily available atta now is available for the common man in different places, and they notice it and they bought and benefited from it. We have taken measures, and as a result, subsidized Bharat Dal, 60 rupees per kg bags and 55 rupees per kg if it is 30 kg bag. 2.97 lakh metric tons as of 31st January has already been sold, meaning poor people have already taken it from these various outlets. Onions are available at 25 rupees per kg, sir. And for that, 3.96 lakh metric tons have been already sold by 3rd February 2024. Only recently have we started Bharat rice being sold at 29 rupees per kg. So I think even in the question hour, sir, I've gone into detail about how inflation is being managed. I don't want to elaborate on it. Much has been said also in the white paper. Sir, there are just one other thing. Very senior member, respected K.C. Venugopalji had raised a lot of issues. I just want to highlight the few information, which also some other people talked about government jobs. So I want to highlight the unemployment rate for graduates has declined from 17.2% in 2017-18 to 13.4% in 22-23. Unemployment rates for overall for everybody declining from 5.8% in 2018 to 2019. Now it's come down to 3.2%, 22-23. So it's coming down. The PLI scheme also witnessed over 1.07 lakh crore of investment, leading to production of 8.7 lakh crores. Employment generation through that is about 7 lakh for individuals, 7 lakh individuals. Sir, the yearly net payroll additions to the EPFO, till some time ago, the minister was here, the net payroll additions to the EPFO more than tripled from 61 lakhs to 139 lakhs in 2022-23, sir. So, government jobs in particular, someone did raise that question. As many as 8,82,191 central government vacancies have been filled up. I think it was Tiruchi Shivaji, he is not here now, have been filled up in the last 9 years as compared to just 6 lakhs which was filled up during 2004 to 13. Regional recruitment boards gave government jobs of 4,30,592 youths between 2014 and 2023. Government launched the Rozgar Mela in October 22, as a result of which today 6.32 lakh people have already got the appointment letters in their hand. 10 lakh central government jobs are being given through that. Sir, whenever we talk of inflation, there is this comparison, our period, your period. I have already sort of established that. One important fact, sir, despite collapse in crude oil prices, in the second half of financial year 9, financial year 10, full year, and financial year 11, the inflation was running in double digits, which is what I said. Crude oil prices were coming down, but that benefit was not being passed on to the common public. That's their policy. What is Prime Minister Modi's policy, sir? When crude oil prices were at one level, when they started coming down, twice, once before Deepavali, 2022, and 21 and 22 again, we reduced the prices of excise. As a result, the pump price of fuel came down. So the passing on to the common citizens is a very important criteria which UPA never followed. So specifically, questions about EDs being used, weaponized, CBI is being weaponized. I want to remind
There are several instances, but one instance of how CBI was misused against an honest officer, SBI chairman R.K. Talwar, was an honest person who was heading the bank, but because he refused to give loan to one of their favorites, recommended by the first family, CBI went to his house. He was compelled to resign from the post of chairman, and that is weaponizing. That was weaponizing CBI, nothing else. Here, when we've given independence to ED, and they go searching, and the accusation is, oh, they do it only with opposition leaders. I want to say, first of all, whether through CBI or ED, where the money laundering element comes, they want the money laundering to happen so that through the back door they can benefit out of it. So ED and CBI did not follow on PMLA cases because that was important for them. That operation should keep going on. If it is stopped using PMLA, money will not come to them in the form of kickbacks. So ED was made to remain dormant. CBI did not pursue PMLA cases, and data proves it. During their time, sir, number of prosecution complaints filed were just 102 by ED. Whereas when we have given them independence to contain black money, contain money laundering, the number of cases now filed are 1,200. And number of restitutions, amount that is restituted, which is taken away from the wrongdoer and given to banks or institutions like that, during their time was nil. They did not restitute even 1 rupee from the wrongdoer to the bank or to anybody else, whereas actual restitution during our period is 16,333.02 crores they've come back to the bank. Similarly, red corner notice, extradition, none of that has been done during their time. Everything is nil, 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 nil. Whereas what we have done is to issue red corner notice on 24 people, and orders have already been passed to extradite Vijay Mallya, Nirav Modi, and Sanjay Bhandari, all of whom benefited through loans during their period. Their period they gave loans, and these people ran away from the country. They did not take any action, and when we came to power, we had to send notice, fight in the case, and the orders for extraditing them has already been issued. So, K.C. Venugopalji had, I can't see him here, but I'll still respond, said, tell me one scheme that you have brought compared to our, RTE, RTI, and NFSA. Sir, I want to just give him one. More also. I want to highlight the fact, sir. I was immensely grateful to our member from Uttar Pradesh. I'm immensely grateful to our member from Uttar Pradesh, Vrajlalji. He spoke, sir, to tell you what exactly is the mindset. He's a policeman. Oh, is he? He's a former DGP. Oh, I better be careful then. But still, he spoke total truth. I'm not... No, what I meant was DGPs have expertise on account of their training to know the mindset. Sir, he actually nailed the point so effectively. If we start looking at governance only from the point of view of entitlement and not empowerment, you can always quote saying right to food, right to education. It's all right. You did it very well. I appreciate that. But how many who have bought? Again, tell me in the name of right to something, right to something. Vrajlalji actually highlighted where that empowerment should have happened, and it has happened under Modi. It has not happened earlier. What are they? For example,
he recited from 1947 how a Dalit leader went to the then Pakistan, and then Pakistan, meaning the East and West Pakistan, was made law minister, came back and realized this whole farce of, Dalits don't get empowered can be dispelled, and to dispel it, you need a leader like Prime Minister Modi. 47 till today, that approach of empowering Dalits has not happened. Empowering tribals hadn't happened. I'm giving that example based on also what Rajlalji highlighted. Dalit, tribal, 5 of the sacred sites of Dr. Ambedkar have been bought and established and flourishing under Prime Minister Modi's time. They could contribute to Dr. B.R. Ambedkar only in one way. They feared people who would overshadow the first family, whether it is Dr. B.R. Ambedkar or farmer leader Charan Singh ji or Shama Prasad Mukherjee ji. They make sure that such leaders, Karpuri Thakur ji, they make sure that leaders who they perceive as being a threat to the first family, they undermine. They make them lose in elections. They come to insignificance. And when somebody else gives them the recognition, gives them the due honor, we cannot digest it. That's the story, sir. I'm thankful to our member, Rajlalji, to have brought that point back. Tribal leader today, a woman leader from Odisha, is occupying the highest position as President of India. And that is because Prime Minister Modi has given them. And Birsa Munda ji, who's Bhagwan for tribals, that day has been declared as a day for Samman of all the tribals. Why couldn't they do it during the time? No, they were believing only to keep them as vote banks. I'm giving you a few crumbs, you remain there, but give me vote. That's the story. Prime Minister Modi doesn't believe in that. He believes in empowering them, honoring them. And that is the similar treatment and recognition which was given to the Shahbzades, the 2 young children of the Guru who gave their lives to protect this country. So the approach is empower people, don't keep them under your thumb because you want their votes by throwing some few crumbs. No, that is the approach with which we've gone, and therefore asking us, tell me what that one signature project that you've got. We brought right to education, right to farmers and everything else. But even when doing that, the so-called Right to Food Act, even when doing that, they do one thing here. Internationally, they do things to undermine that thing here. If you're giving us right to food, how did you go to Bali in 2013 and give away the right for doing MSP-based procurement from farmers, keeping a buffer stock, releasing that through PDS? You gave it all away by signing the Bali Declaration in Indonesia in 2013. And here you're coming and telling us we've given right to food? From 2017, sir, if only that agreement and Bali Declaration were to be implemented, we wouldn't be able to procure 1 grain of rice from the farmers today. We wouldn't be able to have a ration shop today. We couldn't have given food grains from our buffer stock for the poor today. So one side you come and do a right to food, on the other, in the international platform, you go and sell away India's right to protect its farmers and protect its poor. So this is the hypocrisy. And therefore, if you're going to ask me, what is the signature contribution? At least we have honestly made sure the poor get free food grains. They get houses. They get water in their houses. They get electricity. They get cooking gas. All this under Prime Minister Modi. So, sir, I don't want to further take more time.
there are just one important issue on the not so glamorous side of reform. Because most of us look at a glamorous side. There are some work which have been done, which has resulted in good amount being saved. Otherwise, pilferages happened. And because of pilferages, the government was short of revenue. Now that we save it, we are able to do more projects for the poor. So we introduced, I did say that the expenditure reforms committee was formed, and as a result, the budget cycle also was changed. State governments, because we presented budget at the end of February, state governments which used to present their budget in the month of February would not have the details of the centre's budget details, and as a result, they were presenting budgets on the, because we were presenting our budget in the end of February, they were just presenting something and trying to readjust. That got corrected because budgets were started being presented on 1st February. States now are able to get an idea of what is coming to them and plan for themselves. That is one. Second, plan, non-plan expenditure. By keeping that difference, you're constantly playing with discretionary allotments, which is what the Planning Commission earlier did with all the state governments. Such distinction is not even appropriate, as non-plan expenditures include maintenance of defense systems, social security, and pensions and insurance and so on, even the subsidy for poor. So we have shifted the focus to holistic allocation with bifurcation on revenue and capital expenditure. So these changes have resulted in states feeling a lot more empowered to plan their budget. Also, sir, Treasury single account. That's a system that we brought in, which influences how money goes to states for their schemes just in time. As resources are borrowed to finance the government's developmental agenda, the just-in-time release helps in saving interest costs and fostering transparency. Let me clearly say here, sir, Treasury single account system, which we brought, has given an estimated savings of 10,000 crores, and that is being used for bigger schemes and giving poor in return. The single nodal system, another reform, unglamorous, which we brought in, has given an estimated savings of 10,592 crores. Again, all these are going for Garib Kalyan. Sir, MSME, this is my last point. MSME, after demonetization, all MSMEs have got wiped out. K.C. Venugopalji was feeling very concerned. All of us feel concerned about MSME. And he said because of that, that went away, all MSMEs are struggling, many died. But I want to say here, sir, as on 4th December 2023, as per the Udyam registration portal, the total number of MSMEs registered in the country are 3.16 crores, including informal micro enterprises, which are in the Assist platform. Again, early January, as per the Udyam registration portal, the total number of women-owned MSMEs was 1.17 crores. So MSMEs are getting registered even newly. Export of MSMEs in all India exports during the year 22-23 was 44%. Do you think it will happen in 22-23 if post-demonetization all MSMEs got wiped away? 40%, 44% of all India exports are happening through the MSMEs. So they should do some more homework rather than come with general observations which are getting disproved each time data is thrown at them. Sir, the efforts that we take are, during the COVID itself, 5 lakh crore emergency credit line guarantee scheme for businesses were extended, which were used by a lot of MSMEs, and I'm telling you with great sense of pride,
that even as we come to the end of that period, many of them have honored their own loans returns and servicing the interest. This guarantee is not going to be used by most of those loans which were given. 50,000 crore equity infusion through MSME Self-Reliant India Fund has happened. We've done that for MSMEs. No global tenders in this country for procurement can happen up to 200 crores. They have to be reserved for MSMEs. No global tenders. Similarly, sir, launching an online portal, Champions, in June 2020 to cover many aspects of e-governance so that they can be made easy. Inclusion. When we think of MSMEs, we think of only manufacturing. But what we've done is also to bring in small traders onto this. Retail and wholesale traders are also now recognized as MSMEs. They can get all the benefit. Non-tax benefits have been extended for 3 years in case of an upward change in status of MSME. Rollout of racing and accelerating MSME performance program with an outlay of 6,000 crores over 5 years. And lastly, sir, the Udyam Assist platform, which was launched in 23 to bring informal micro enterprises under the formal ambit to avail priority sector lending has also been done. So MSME can now take the money which is coming under the priority sector lending umbrella. So lastly, I was a bit appalled. Madam, this is second lastly. Did I say one lastly? I'm sorry. Second lastly. I'm sorry, sir. I'll correct myself. Sir, who made Charan Singh PM? Was an observation by K.C. Venugopalji. People make PMs. I hope the Congress party is not living in that thing. They make PM, they throw PM, they bring in PM, they reject PM. No. People have rejected the Congress. But if you're well aware of that politics of that time, sir. Indira Congress decided to extend support to Chaudhry Charan Singh, who took oath as Prime Minister on 28 July 1979. Within 24 days, he resigns. Why? Because Indira Gandhi's Congress withdrew support from him. Charan Singh said he resigned because he was not ready to be blackmailed into withdrawing cases against Indira Gandhi. Indira Gandhi cases which were put on her post-emergency. Indira Gandhi ji wanted Charan Singh to withdraw certain cases against her relating to the excesses committed during emergency, and he refused. Charan Singh ji said while resigning, and I quote, "The country would not have forgiven us if we had, for the sake of remaining in office, agreed to withdraw prosecutions against persons responsible for atrocities during emergency." Unquote. That's the honor with which that person left from there. Chaudhry Charan Singh ji had to leave because he didn't think he should yield to that blackmail. So it was the Congress party which brought down Chaudhry Charan Singh ji in 1979. Good that K.C. Venugopal ji brought that up. It's all right for them to now say, it's all right, you go away to his grandson. But the fact remains, they had no respect for Chaudhry Charan Singh ji. This is the way they blackmailed him. An honorable man that he was, he said, no, I'm not falling into this, and he went away. Similarly, today, I'm grateful that our government has honored P.V. Narasimha Rao ji. Many things can be said. 91 reform, if he wasn't the Prime Minister at that time, even an economist, Dr. Manmohan Singh, couldn't have performed what he did as a government. Congress party did not even have the gratefulness to recognize him even after his death. The pictures, the video of the party's office, headquarters office, gate closing, even as his corpse was going, will bring tears to anybody's eyes. A person sacrifices and serves the party, but because of prejudice, you ignored him even after his death.
That is the gratefulness this party has shown. And I don't need to say that it is the party which gave, under their own prime ministers, the prime ministers gave themselves Bharat Ratna. Nehruji, Indiraji, all gave themselves the Bharat Ratna. They didn't bother about others. And they certainly didn't bother about Dr. B.R. Ambedkar, who they constantly kept defeating in political fields. They didn't give the Bharat Ratna to him. And therefore, sir, this party should not shed crocodile tears, or should not, for the record's sake, say, oh, no, we welcome Bharat Ratna being given for P.V. Narasimha Rao, for Chaudhry Charan Singh Ji, and so on. They've proven when they were alive how torturous their lives were, how they tortured them. All that is very clear, and it will go on the records of the parliament as to how, when they were alive, they tortured them, insulted them, and now when a different party, when Prime Minister Modi gives them Bharat Ratna, they are not even able to gulp the fact. Thank you very much. माननीय सदस्यगण, आज का दिन मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का रहा है। मैं आपसे और मन से संरक्षण चाहता हूं। मर्यादित आचरण में रहना ऐसे पल आते हैं, मुश्किल हो जाता है। पूर्ण सद्भाव के साथ सदन की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए दुखी और आहत मन से मैं आपके समक्ष चिंतन का एक विषय रखता हूं। यह सदन पूरे देश का प्रतीक है। इस सदन में जो भी आचरण होता है उसका चिंतन होता है, अध्ययन होता है, लोगों के मन में प्रसन्नता होती है, लोगों का मन दुखी भी होता है। ईमानदारी के प्रतीक, उत्कृष्ट आचरण के धनी, किसान और गरीब के हितकारी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देना स्वाभाविक रूप से सभी के लिए एक उत्सव का विषय होना चाहिए था। बाकी 4 महानुभावों को दिया, अत्यंत उत्सव का विषय होना चाहिए था। न समय को हम देख सकते, न ये कह सकते क्यों दिया। मैं ये भी आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज दिन भर में बहुत से लोगों ने मुझे सूचित भी किया है। इस सदन की गरिमा का आहत होना और मेरे इस आसन पर विराजमान होना मेरे लिए दुखदायी रहा। आज मैं मानकर चलता हूं कि सदन का हर सदस्य भारत के इस महान सपूत को, जो भारत रत्न दिया गया, उस पर गर्व महसूस करता है। उनके पोते को उनके लिखित अनुरोध पर कुछ समय सदन में देना स्वाभाविक था। चौधरी चरण सिंह किसी परिवार में सीमित नहीं है। चौधरी चरण सिंह अपने उस परिवार के भी सीमित नहीं, वो पूरे देश में थे। जब ये मुद्दा उठा और जो आचरण मैंने देखा और आप सबने देखा, वो अप्रत्याशित था, अपमानजनक था, पीड़ादायक था, हमारी गरिमा के विपरीत था। हमारा आचरण इतना छोटा था उस दिन कुछ लोगों का कि मैं शर्मसार हो गया। मेरे मन में कई विचार आए और मेरे मन में एक विचार तुरंत पद त्याग का भी आया कि कृषक, बताता हूं, कृषक पुत्र होने के नाते
नहीं, सेंसिटिव नहीं सर, नहीं। केशव जी प्लीज, केशव जी सेंसिटिव नहीं हूं। मैंने जीवन में कभी भी, आप मेरे से कई बार मिल चुके हैं, आपकी हर रीजनेबल बात को मैंने देखा है। फिर मेरे को बताया गया कि मैं इस पद पर पदासीन नहीं हूं। मैं इस पद पर पदासीन हूं बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एक्स ऑफिशियो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस पद की वजह से मैं यहाँ हूं। मैं कह सकता हूं कि मेरे जीवन में बहुत कठिन पल आए हैं। मैंने मेरे जवान बेटे को खोया है, लोगों ने सहानुभूति दी है, पर आज की पीड़ा, जब जयंत चौधरी बोल रहे थे और जयराम रमेश क्या कह रहा था, मैंने सुना है, मेरे कानों ने सुना है कि जाओ जहां जाना है। शमशान घाट के ऊपर उत्सव नहीं मनाया जाता है। ये हरकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने देखी है, ये पीड़ा महसूस की है। मैं नहीं चाहता कि इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए। आज मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है कि राजनीतिक बहस में जितने हथियार निकालने हैं निकालिए, पर जहां व्यक्तियों के सम्मान की बात आती है, राजनीतिक व्यक्ति के भी सम्मान की बात आती है, हमको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। ये बात सदन तक सीमित नहीं है डॉक्टर केशव, ये बात करोड़ों लोगों तक जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही संयमित होकर, सद्भाव तरीके से, सदन की प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखकर, विवशपूर्ण वातावरण में हाथ दिल से ये बात कह रहा हूं। मेरा अनुरोध रहेगा सदन को कि हमको अलग से मिलकर, सदन के बाहर मिलकर, बैठकर इन विषयों पर एक मत होना चाहिए। इस जगह से मैंने किन किन को सम्मानित नहीं किया। मैं सदस्य के जन्मदिन को सम्मानित करता हूं, मैं हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करता हूं, जिनको ऑस्कर अवार्ड मिले मैं उनको सम्मानित करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता हूं। जब मुझे पता लगा इन 3 महानुभावों को भारत रत्न दिया गया है बिना समय गंवाए भी, मुझे पता था कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि इस आसन पर बैठकर आप प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़ रहे हो। तो मुझे लगा कि सभापति के रूप में मुझे तुरंत ये जानकारी सदन से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि सदन का हर सदस्य ये महसूस करेगा कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है। अब क्या गुजरी होगी उस परिवार पर, क्या गुजरी होगी किसानों पर, गरीब पर, मजदूर पर, गांव के अंदर, कि जयंत चौधरी को बोलने नहीं दिया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमानवीय तरीके से किया गया, इशारों से किया गया। ये आंखों से देखा मैंने। मैं बहुत दुखी हूं, एंड आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट इट। वी मस्ट इन वन वॉइस कंडेम इट। व्यक्तिगत रूप से मैं इसकी इतनी भर्त्सना करता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। इस सदन की गिरावट की हद तक आ गए हम, अब हम इसको और न गिरने दें। मानकर चलिए इसका बहुत व्यापक असर होगा। खुशी का असर कम होता है, दुख बहुत लंबे समय तक पीड़ा देता है। आज के दिन क्या आवश्यकता थी? 2 मिनट बोल लेते, बात खत्म थी। मुझे लिखित पढ़ना पड़ा तो मुझे कहा जाता है कि पहले क्यों नहीं बताया। नियमों को देखेंगे नहीं, मेरे आचरण को जो मैंने कई सप्ताहों से किया दृष्टिगत नहीं रखेंगे, और अचानक टीका टिप्पणी करेंगे।
मैं खड़गे जी का बहुत आदर करता हूं। उनका इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, सादगी भरा जीवन है, पर मैं खून की घूंट पीता रहता हूं कि आसन की गरिमा का वो ध्यान नहीं रखते। मैं इस चीज को हमेशा दूसरी दृष्टि से देखता हूं, पर इसकी भी एक हद है। मैं इस आसन पर बैठा हूं, जगदीप धनखड़ के साथ कुछ भी कीजिए, आपका विवेक है। आसन को चुनौती देना, जोर से बोलकर चुनौती देना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता, खास तौर से प्रतिपक्ष के नेता को। मैं हाथ जोड़कर ये शब्द कहने के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं कि इस सदन की इस गिरावट में मैं कोई अंकुश नहीं लगा पाया। नहीं, कुछ नहीं, 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 ये प्लीज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Short duration discussion. Notices have been received from the following members to raise a discussion. जो हुआ है तो टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है। किसी ने चरण सिंह को क्यों दिया, किसी ने चैलेंज नहीं किया। धन्यवाद। अब इस विषय में बहस नहीं, इसको माननीय सर भाई अपॉलॉजी कर, भाई अपॉलॉजी। माननीय चेयरमैन ने अपनी वेदना प्रकट की है, पूरा सदन उनके साथ है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर पुनः वही आचरण। नो, नाउ ऑनरेबल चेयरमैन हैज कॉल्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड मिस्टर केशव, डॉक्टर केशव। Notices have been received from the following members to raise a discussion on श्री राम मंदिर की ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, हिस्टोरिक कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री राम टेम्पल एंड प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर के लक्ष्मण, श्री राकेश सिन्हा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज जब हम लोग इस कालखंड में खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि जब मैं किशोरावस्था में था और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उस महान यज्ञ में जिसमें करोड़ों लोगों ने कई पीढ़ियों तक अपनी आहुति दी, उसकी पूर्णाहुति देखते हुए देखना अपने आप में एक बहुत सुखद अनुभव होता है। और यह काल इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है कि यह भारत के अमृत काल का ही कालखंड नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर के माध्यम से शताब्दियों से सोई हुई भारत की चेतना के पुनः उठकर अग्रसर होने और विश्व को नया संदेश देने का एक संधिकाल भी है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे मन में एक भाव आया कि यह ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ असंभव लगने वाली चीज भी साकार रूप धारण हुई है। तो मेरे मन में यह भाव आया कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी, जो अनादिकाल से भारत में उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुमुखी में रामावतार लिखा तो दक्षिण में तमिल में कंबन ऋषि ने वही रामावतारम नाम से ही लिखा, तो बंगला में कृतिवास ने यदि लिखा, तो हिंदी में तुलसीदास ने लिखा, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से सब तरफ भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम, मैं ये कहना चाहूंगा, उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की,
आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो प्रतिक्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर आगे समस्या ये थी, तो हम कहते थे शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। और आपदाओं विपदाओं को पार करते हुए वह सौगंध आज पूर्ण हुई। इसके लिए अनेकानेक लोगों ने बलिदान दिया, देवी दीन पांडे जी से लेके सरदार फकीर सिंह से लेके हजारों संतों से लेके कार सेवकों तक और कोठारी बंधुओं तक। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस विषय पे कोट करना चाहता हूं। 2003 के नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल ने एक किताब लिखी थी भारत के बारे में, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत एक विचित्र देश है जहां पर कि अपनी संस्कृति को आघात करने वाले विषय को पढ़ाया जाता है और आघात करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए उन्होंने वुंडेड सिविलाइजेशन वर्ड कहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इतिहास में प्रत्यक्ष प्रमाण थे उनको भी झुटलाने का प्रयास हुआ। श्री राम जन्मभूमि केस के सिर्फ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जब मुकदमा चला तो यह पूछा गया कि भाई पिछले उदाहरण दीजिए कोई शताब्दियों के, तो विपरीत पक्ष के पास कोई उदाहरण नहीं थे। हमने फॉरेन ट्रेवलर्स के उदाहरण कोट किए। विलियम फिंच नाम का ब्रिटिश ट्रेवलर आया 1610-20 के आसपास, उसने कहीं पर मस्जिद का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ मंदिर का उल्लेख किया। फ्रेंच ट्रेवलर आया जोसेफ टिफेंथलर 1720 के आसपास, तो वो कहता वहां पर चबूतरा है जिसमें कि और एक पक्ष में वो मस्जिद की बात करता है और बताता है कि रामनवमी पे लाखों की भीड़ लगती है। परंतु उसके बावजूद एक मजेदार बात बताना चाहता हूं, जब से ब्रिटिश डॉक्यूमेंट आया तो जो पहली एफआईआर ऑफिशियली दर्ज हुई है नवंबर 1858 में, फैजाबाद के थानेदार को रिपोर्ट दी गई है कि 25 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान के सब तरफ राम राम लिख दिया। और जानते हो उस पे सभापति महोदय सिग्नेचर क्या है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अब बताइए, जन्म स्थान पहली एफआईआर में खुद मुतव्वली लिख रहा है और उसके बाद इस विषय को इतना बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए, उसके बाद यह ध्यान देने योग्य बात है, यह समुदायों के बीच के संघर्ष का विषय नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का विषय था। 12 साल टाइटल सूट की मियाद होती है, 12 साल तक मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकारी नहीं था। 1961 में, दिसंबर 1961 में जब 12 साल पूरे होने में 4 दिन रह गए थे, तब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड उसमें पैरोकार बना। क्यों? कुछ सेकुलरिस्टों ने समझाया, कुछ लेफ्टिस्टों ने समझाया। और इसका उल्लेख के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में किया है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका मानता था कि हमें इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है, परंतु राजनीति के चलते हुए भारत के स्वाभिमान का विषय ये इसका प्रतीक बना। परंतु उसके बाद कोर्ट का निर्णय आया, संपूर्ण मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए आज ये दिन आया। तो मैं कई बार हम लोग से कहा जाता है कोर्ट का निर्णय आया तो इसमें आपने क्या किया? तो मैं बताना चाहता हूं, हम जब जब सत्ता में आए 1991 में कल्याण सिंह जी की सरकार ने आकर 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। उसके बाद याद करिए खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। तो अटल जी की सरकार आई तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ग्राउंड पेनेट्रेशन रेडार, तो रेडार मैपिंग की गई और वो कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई। मतलब ऑपरेशन पे रोक थी, अल्ट्रासाउंड पे तो नहीं थी ना, तो अल्ट्रासाउंड करके दिखाया गया, देखो भाई अंदर क्या है। फिर कोर्ट ने परमिशन दी और उसी खुदाई की हुई 2003 में, और उसके अंदर जो साक्ष्य निकले उसी से 30 सितंबर 2010 का लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसने गर्भगृह श्री रामलला विराजमान को दिया। अब जब मोदी जी की सरकार आई तो क्या अंतर था? विषय सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सारी की सारी प्रोसीडिंग सिर्फ इंग्लिश में होती है और वहां सारे डॉक्यूमेंट्स जो हजारों हजार पेज के थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था विद ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, जिसमें अरबी फारसी के भी थे, संस्कृत के भी थे, सबके थे। तो हमारी सरकार में आने के बाद अगर 60 साल उसमें लगे थे, हो सकता 50 साल इसमें भी लग जाते, क्योंकि बहुत से लोग वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर ये भी कहते थे फलां साल के पीछे ले जाइए इस जजमेंट को। मगर मोदी जी की सरकार ने आने के बाद 24/7 लगाकर सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनका केवल 2-3 वर्षों में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद जाके कोर्ट में अर्जी लगाई कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार तो उसमें विचार करती थी कि हनुमान तेहि परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। और फिर आपने देखा कि वो जब जजमेंट आया, और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि मान्यवर, हमसे टीवी डिबेट में अक्सर बहुत पूछा जाता था कि आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महोदय, राम का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, ये भारत की भव्यता का आगाज था, और वो तारीख कोई तारीख नहीं थी, वो काल की गति थी। और वो तारीख क्या थी मैं बताना चाहता हूं। जब रामलला इस मंदिर में आए हैं
तो वो तारीख आई है 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लेके आई है, 54 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेके आई है, हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क लेकर आई है। और इतना ही नहीं, हर शहर में हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, समुद्र पे सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, और चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब का पुल लेकर आई है, हाईएस्ट एफडीआई लेके आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लेके आई है। और जनाब वो फिल्म का डायलॉग होता था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेके आई है, जो 3 साल के अंदर सारी तारीखों को खत्म कर देगा। मगर महोदय, ये तारीख का राज थोड़ा और गहरा है, क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो तारीख वो होनी थी कि प्रधानमंत्री को जाना था, यानी तारीख उसका इंतजार कर रही थी कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो उस दिन आकर प्राण प्रतिष्ठा करेगा। और वो प्रधानमंत्री भी कैसा होगा, जो कि पूरे राष्ट्र का सपोर्ट लेकर, हाँ बोल रहे हैं प्लीज, अरे भाई बोल रहे हैं मैडम प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज बैठे आप, काहे परेशान हो आपको रहे हैं? इजाजत नहीं है, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज। अरे सुनिए, आप बोले। महोदय, प्रधानमंत्री भी कौन होगा, जो पूरे देश का जनादेश लेकर आया होगा और दूसरी बार भी लेकर आया होगा, जो अपने घोषणा पत्र में यह लिख के लाया होगा कि हम राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, यानी 140 करोड़ लोगों के जनादेश के साथ वो तारीख आने वाली थी जिस तारीख का इंतजार था। और महोदय, सिर्फ तारीख इतनी नहीं थी मान्यवर, अगर शास्त्रीय ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो 11 दिन का उपवास रख के तपस्या भी करनी थी। तो ऐसा भी प्रधानमंत्री आने वाला था जो संकल्प लेकर 11 दिन की तपस्या करे। और मैं महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, 11 दिन नारियल का पानी पी के हम में से कितने लोग तपस्या कर सकते हैं? महोदय, वो जो हर नवरात्र ऐसे रहता हो, उसी के तपस्या का वो अभ्यास होगा। और मैं बताना चाहता हूं, स्वामी गोविंद गिरी जी जो कोषाध्यक्ष है न्यास के, उन्होंने जब उपवास तोड़वाया तो उन्होंने कहा, मैं तार्किक व्यक्ति हूं, मेरे मन में संदेह था। तो जब इनकी माताजी जीवित थी तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा 40 वर्षों से अभ्यास है ये उपवास रखने का, इसलिए 11 दिन शासकीय कार्य रखते हुए भी वो उपवास कर पाए। ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा थी तारीख को। और फिर दक्षिण में जाकर, चाहे नासिक हो और फिर चाहे गुरुवायूर का मंदिर हो अथवा रामेश्वरम में खड़े होकर जब प्रधानमंत्री जी 22 कुओं के जल से स्नान कर रहे थे, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह संदेश था दूर दक्षिण सिरे पर खड़े होकर कि देखिए ये राम है जो घट घट में व्याप्त है पूरे उत्तर से दक्षिण तक। और उस तपस्या से प्रकट होने के बाद उस प्रधानमंत्री की दरकार थी तारीख को, क्योंकि राम का काज कौन कर सकता है? गोस्वामी जी लिख गए हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अगर राम तपस्वी राजा थे तो तपस्वी प्रधानमंत्री भी होना चाहिए था वो करने के लिए। और इस तारीख का इंतजार था, तारीख का ये राज समझने के लिए। हम आपको समझाएंगे भी तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह थी कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट गया। जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कितने प्रकार की चीजें होती थी। इसके लिए हमें निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। पूरे देश में जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा। और महोदय, 90-92 में भारत ही नहीं, अगल बगल भी बहुत कुछ हुआ था। अब की अगल बगल में भी शांति बनी रही, ये तपस्वी राजा का प्रताप था। और इतना ही नहीं महोदय, अबू धाबी में भी मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है भारत के लिए अमृत काल में सांस्कृतिक गौरव का इससे बेहतर काल नहीं आ सकता था कि राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं महोदय, यह हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं था, यह भारत के जय और विजय का विषय था। और उससे भी बढ़कर यह मूल्यों का विषय था। कौन से मूल्य थे? एक मूल्य वो जिसमें भगवान राम उस मूल्य के प्रतीक बनते हैं जिसमें 4 भाई हैं, पिता के एक वचन पर वन चले जाना, दूसरे भाई का जंगल जाना, तीसरे भाई का खड़ाऊ रखकर शासन करना, एक ये परंपरा थी। और दूसरी परंपरा वो जिस बाबरी परंपरा में भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 3 को कत्ल कर दिया, बुढ़ापे में बाप को जेल में डाल दिया। और इतने पे भी संतोष नहीं हुआ, बल्कि सर काटकर थाली में रख के जेल में बंद बाप के पास भेजा। आप किसी मत को मानने वाले हो, अपने घर में क्या देखना चाहते हैं, भाई की खड़ाऊ या भाई का सर? इन 2 मूल्यों के अंतर का यह प्रतीक था। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई नेता नहीं था। और मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, मान्यवर,
उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई है, चकबस्त रामायण, और उसमें इसी मूल्य को अप्रिशिएट किया गया है कि जब भगवान राम राजा दशरथ से अनुमति लेकर जाते हैं तो उर्दू के प्रसिद्ध शायर चकबस्त ने, और वो लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा है, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। यानी उनको तो दिखा कि राहे वफा की कौन सी मंजिलें हैं जो अव्वल हो रही हैं। मगर क्या बताऊं महोदय, एक फैक्ट बताना चाहता हूं। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए तो सबसे पहले वो रोशनी किसने देखी थी? वो यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि रात में उसको दिव्य रोशनी दिखी, और जब दिव्य रोशनी हटी तो वहां पर श्री राम लला विराजमान थे। अब्दुल बरकत को रोशनी 1949 में दिख गई, मगर कुछ सियासत वालों को रोशनी 2024 में नहीं दिख रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबरी पक्ष के पैरोकार थे इकबाल अंसारी, और यह उदारता देखिए कि सबको बुलाया गया, विरोध करने वालों को बुलाया गया, ट्रस्ट के द्वारा गोली चलाने वालों को बुलाया गया, और इकबाल अंसारी को ही बुलाया गया, और इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में आ गए। उनका इकबाल तो बुलंद हो गया, मगर इन लोगों का इकबाल जमींदोज हो गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उसका एक कारण है। ऑन द लाइटर नोट, इसको कोई पर्सनल ना ले महोदय, ये कहा जाता है कि हमारे यहां राम का तत्व या ईश्वर का तत्व कौन नहीं समझ पाता है? जो कामी, क्रोधी, लोभी, खलकामी हो। और राजनीति में वो नहीं समझ पाता जो सेकुलर और वामी हो। अब मैं ये बताना चाहता हूं महोदय कि जो लोग कहते हैं भगवान राम ने अपने जीवन में, ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है, कई लोग एक आध कोई शब्द लेकर बगैर पढ़े हुए, बगैर उस भाषा को जाने हुए अपनी बात कहने लगते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, भगवान राम ने कौन मेरा भक्त है इसका बाकायदा उदाहरण दिया। उन्होंने लिखा है, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? भक्ति से मिलता हूं। ये सारी 10 चीजें हो किसी के पास और भक्ति ना हो, तो उन्होंने कहा, भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। अर्थात अगर ये सब कुछ हो, जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हो, भक्ति ना हो, तो ऐसा जैसे बादल हो उसमें पानी ना हो। इसलिए भगवान ने इस बात का संदेश दिया। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहा जाता था, साहब वैज्ञानिक प्रमाण दीजिए। मैं बस एक बिंदु विज्ञान का भी और बताना चाहता हूं। यह विशुद्ध विज्ञान है, क्योंकि अगर आपने रामचरितमानस के शुरुआती श्लोक पढ़े हो तो उसमें बहुत साफ लिखा, सीताराम गुणगाम पुण्य अरण्य विहारिण्यो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वरो कपीश्वरो। अर्थात विशुद्ध विज्ञान महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और विज्ञान क्या है? पूछा गया था कि भगवान हुए कब, ये तो बताइए, यहां हुए कि नहीं ये बताइए। अब आप ये बताइए कि आज हम समय कहते हैं, उनका एग्जैक्ट टाइम लिखा है। जैसे आज हम टाइम कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ और है, लंदन में कुछ और है, तो एक जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम बताया गया। पर अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एब्सोल्यूट मेजरिंग पैरामीटर क्या है, which is equally applicable on earth, moon, solar system and any point in the space, it is only the relative positions of planet। और भगवान राम का वो एग्जैक्ट रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, जो आइंस्टीन का 4th डायमेंशन कहा जा सकता है, वो लिखा है कि मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल था, तुला राशि में शनि था, मीन राशि में शुक्र था। और जब नासा ने अपने प्लेनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाला तो 5114 बीसी की डेट निकल आई। इससे ज्यादा किसी को सबूत चाहिए? विज्ञान का वो सबूत मिला। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अगर पढ़ी हो तो भगवान राम के जन्म के समय लिखा है कि चैत्र मास के समय शरद ऋतु थी। अंगद बताते हैं कि अश्विनी मास यानी आज के अक्टूबर के समय वसंत ऋतु थी। और इतना ही नहीं, कहा गया जब किष्किंधा से भगवान निकलते हैं तो धूमकेतु टकराया था मूल नक्षत्र से, और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी गणना की तो वो ठीक डबल हो जाता है, 14,000 साल पीछे आता है। इसका मतलब प्रमाण देखने हैं तो प्रमाण जमीन के नीचे से भी निकले, शाही फरमानों से भी निकले और आसमान से भी निकले, समस्त मर्यादाओं को पूर्ण करते हुए हमारे ये इस विषय के ऊपर आए। और मैं एक बात और कह दूं, कभी कहा जाता था महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण भगवान राम के पैदा होने से पहले लिख दी थी, और कहा जाता है भविष्य में जाके लिख दी। कहा जाता है गप है, बकवास है, कैसे हो सकता है। महाभारत कहा जाता है वेद व्यास ने भूतकाल में जाके लिखी, वैशंपायन के समय। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, 1916 में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद अब टाइम ट्रेवल फॉरवर्ड, टाइम ट्रेवल बैकवर्ड बकवास है क्या?
अगर किसी ने साइंस नहीं पढ़ी है तो उसे समझना चाहिए, मगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसको कह के, मैं कहना चाहता हूं हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे और ये टाइम ट्रेवल तो बहुत छोटी बात थी जो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। और मैं एक विषय और कहना चाहता हूं, हम सब ने भगवान राम के मंदिर तो देखा, वहां पर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? हनुमानगढ़ी का। आपने हनुमान जी के सैकड़ों हजारों मंदिर देखे होंगे इस देश में, लवकुश का मंदिर देखा है कभी? नहीं। हमारे यहां पुत्र का महत्व नहीं है, शिष्य का महत्व है, भक्त का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व नहीं है, स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। इसीलिए द्रोणाचार्य के बेटे का स्थान ऊंचा नहीं है, शिष्य का स्थान ऊंचा है। इसीलिए हम हर जगह गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। भगवान राम का चरित्र इस बात का उदाहरण देता है कि हर जगह आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, वो भी राम से ज्यादा मिलेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहता हूं महोदय, एक बार एक डिबेट में वो कहने लगे कि भाई, you are talking about the Ram temple, how does Ram temple fits in the 21st century emerging India who aspires to become a technologically advanced and become the economic superpower with the youngest population, where does Ram Mandir fits in that? मैंने कहा सुनिए महोदय, हम 21वीं सदी में भारत को सिर्फ इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल या मिलिट्री सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, हम वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और जब वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं तो इट शुड सिंबलाइज द सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज विच विल इंस्पायर द वर्ल्ड। और अगर सारे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक कोई एक होगा तो वो भगवान राम का मंदिर होगा, जो विश्व के सबसे श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतीक होगा। कैसे? मैं आधुनिक जियोपॉलिटिक्स से बताना चाहता हूं। आज कोई एक देश किसी पर अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का ताइवान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इराक और उसका चला। क्या है डिप्लोमेसी में? नंबर 1 एनेक्सेशन, दूसरे देश को मिला लो। दूसरा है सब्जुगेशन, वहां अपना डिप्यूटी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उसके साथ संधि साइन कर लो। भगवान राम ने क्या लंका को जीतने के बाद एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या वहां पर कोई अपना डिप्यूटी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। कोई ट्रीटी साइन कराई, डोमिनेशन किया? नहीं। तो मैं कह सकता हूं आज के जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है तो उसका प्रतीक वो राम मंदिर दिखेगा, जो पूरी दुनिया को बताएगा कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है बगैर एक दूसरे से लड़े हुए। इसलिए मैं कह सकता हूं 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव ही नहीं है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये एक नया इतिहास बना है और ये हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है जिसके लिए कहा जाता था अरे 370 कभी हटेगी नहीं, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। मगर ये वो लोग कहते हैं जो फूलों के हार पहनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अंगारों के हार पहनते हैं और जो अंगारों के हार पहनते हैं वो इतिहास को बदलने में निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, अपनी सरकार को बधाई देते हुए, श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट, हमने बहुत साफ कहा था हम मंदिर नहीं बनवा रहे, मंदिर न्यास बनवा रहा, हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरों ने कहा था कि हम वो बनवा रहे हैं, तो हम सिर्फ उनके लिए कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश इधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मेरे नेता, मेरी पार्टी ने मुझे टाइम दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मानवर, इस मुद्दे पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में भी अवध का रहने वाला हूँ और अवध में भी फैजाबाद तत्कालीन अब अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैं हर वक्त विधानसभा का सदस्य रहा, उस समय मैंने इसके उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे। मैं सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का सम्मान करता हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना है। मैं उस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। फिर आप वक्त देंगे तो बता दूंगा, इस न्यायालय से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे, खून खराबा होता रहे
और उसमें वो अपनी सत्ता की गलियारों में सत्ता बनाते रहे। सच्चाई ये मैंने बहुत करीब से देखा। मानवर उदाहरण भी दूंगा। मैं विधानसभा का सदस्य था। हमारे मुख्यमंत्री आदर के साथ जिनका नाम लेता हूं, कल्याण सिंह जी थे। जब उनकी विधानसभा बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे, वो एक नारा था उस समय लगता था बड़ी श्रद्धा के साथ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी आप तो पहुंच गए, अब कब बनेगा? कहला जब केंद्र की सरकार बन जाएगी। केंद्र भी बन गई तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि बाद में बताएंगे। और ये सब विधानसभा की कार्रवाई में अंकित है, तो इसलिए इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो सच्चाई तो ये है, दृढ़ता से कहता हूं, अगर राम मंदिर बना है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। और मैं ही नहीं करता, 140 करोड़ भारतवासी चाहे जित जाति धर्म के हों, सब सम्मान करते हैं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से हुआ, उसका मैं सम्मान करता हूं। पर मैं भगवान राम का पुजारी हूं, शुरू में कह दूं, हिंदू हूं, बताना पड़ता है हिंदू, जहां लिखा जाता है कॉलम लिखता हूं। सनातन भी हूं, सम्मान से कहता हूं और गर्व से कहता हूं। प्लीज प्लीज बोले, प्रमोद जी बोले। अनवर ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हूं, तो हूं और गर्व करता हूं मानवर। पर मैं उन लोगों में हूं जो भगवान राम के प्रति, जैसा हमारे नेता विरोधी कर रहे हैं, आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे। मैं माननीय उपसभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूं। मानवर, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत देश जिसके 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया है, उनमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं। इनमें वो लोग बहुत नहीं जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी और मुखबिरी की हो, आज वो भगवान राम को मानते हैं। मानवर, मैं तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, और आपसे ज़्यादा मुझको कौन समझता है। मानवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ा पुजारी अगर भगवान राम का कोई है, राजनीति में रहा भी, नहीं भी रहा, दिशा भी दिखाता रहा, तो राम का सच्चा पुजारी गांधी था, महात्मा गांधी थे। आज महात्मा गांधी को कौन मानता है, ये जग जाहिर है। पर भगवान राम के सबसे बड़े पुजारी, गांधी का हत्यारा गोडसे की पूजा करने वाला कौन है, ये भी दुनिया जानती है। आज उन सिद्धांतों पे लोग चल रहे हैं। पर मेरी चिंता है, मुझे उससे निवारण लेना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, राजनीति से अगर नहीं जोड़ना था, तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मंदिर बन जाता है। उसके कई व्यवहारिक कारण हैं कि एक मंजिल बना दो, दूसरे मंजिल पे जाएंगे, फिर मजदूर बनाएंगे, उनके चरण होंगे वहाँ पे जहाँ भगवान स्थापित होंगे। मुझे सिर्फ दुख है कि मंदिर के अपूर्ण स्थिति में स्वागत किया गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट। ये ट्रस्ट भी कह रहा है। तो मानवर, इसकी जल्दी क्या थी? कोई कारण है तो उधर से जवाब आ जाएगा। लेकिन जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूं, मैंने पूछा लोगों से कि ये मंदिर कब बनकर तैयार होगा, तो लोगों ने बताया नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक होने की हम भी कल्पना कर रहे थे। एक दिन आया कि ये 22 जनवरी को होगा। मैं अचंभित हो गया कि सब कुछ मुमकिन है, कोई है अगर तो शायद कोई तकनीक आई होगी कि पूरा भव्य राम मंदिर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, मैं अपने
सबूत में भगवान राम के भव्य मंदिर का नक्शा आपको दिखाता हूँ। क्या वो पूर्ण है? क्या पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारत देश को खतरे में नहीं डाला गया? अगर हिंदू धर्म मानते हैं, लोग कहते हैं अपूर्ण मंदिर की पूजा कर लो, तो वो पूरे समाज के लिए पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मैं इसे इससे नहीं जोड़ता कि जिस दिन उन्होंने किया उसी दिन दिल्ली में भूकंप आया था, मैं इससे नहीं जोड़ता उसको। फिर भी लोग तो कहते ही। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मानवर हिंदू होने के नाते हम सब मंदिर में नहीं जा पाते तो बाहर से ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, जो ध्वजा होती है, आप भी करते होंगे। लेकिन इस मंदिर की ध्वजा कहाँ है? मानवर ध्वजा इसलिए नहीं है कि कलश होता तो ध्वजा होती। बिना कलश के निर्माण कर लिया। तो मैंने कुछ पूछा, गांव वालों से, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भैया ये काहे अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये अवध की बात कर रहा हूं। तो मुझे जवाब ये दिया गया, स्लिप पढ़िएगा नहीं, मैं जानता हूं क्या। मानवर मैंने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि भैया तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है। इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब मानवर मैं आगे भी आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा आपसे अयोध्या का रहने वाला हूं, प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री रहा हूं। पर्यटन मंत्री के रूप में मैंने राम कथा पार्क का, राम की पैड़ी का निर्माण सरकार की नीति के साथ किया था। जैसे हमने तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के लिए किया था, ऐसे वहाँ भी पर्यटन मंत्री के रूप में किया था। मानवर मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहाँ मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर, राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने। ये मैं आपके माध्यम से सदन की कार्रवाई में लाना चाहता हूँ। और है एक टीम बना दीजिए, चली जाए सदस्यों की, और मौका देख कर आ जाए। राम मंदिर जहां बना है वो जन्मस्थान नहीं, जन्मस्थान से दूर बना, ऑल पार्टी रहे। चलिए मानवर ये भी हो गया। अब तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़ी चर्चा हो रही कि जैसे पहली बार हवाई जहाज वहां गया, निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उसका विकास हुआ। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में पहला हवाई जहाज मैंने अपना उतारा था अयोध्या में, जिसका विस्तारीकरण, पर हमारा ये था कि सभी जगह होना चाहिए, इसीलिए देवा शरीफ में, लखनऊ का किया, कई जगह किया। मानवर मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ, इसमें बार बार जो भगवान राम की मर्यादा भंग की जा रही ना, कहीं कार्रवाई क्यों हो रही है? आज के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद चुनाव होगा। सब कुछ तो आप समझदार हैं, समझ रहे हैं, पर बोल नहीं रहे हैं, इसलिए कि आपको बोलना नहीं चाहिए। मैं बोल सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। आखिरी एजेंडा क्या है आज का, चुनाव के पहले का? राम मंदिर। तो राजनीतिकरण जो लोग कर रहे हैं, भगवान मर्यादा, रामपुर से एक ही विनती करता हूं, जिन्होंने पूजा की, हमारा टाइम है, मेरी पार्टी है, मेरा टाइम है। तो आपके पार्टी है, ठीक है, मैं एक्सटेंड करूं। मानवर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन गोडसे के पुजारियों को माफ कर देना जिन्होंने गांधी की हत्या की है। नहीं, अभी बोलूंगा मैं, अभी बोलूंगा उनकी तरफ। आपका समय पूर्ण हो गया, आपकी नहीं, पार्टी मेरा दूसरे समय तो अब वक्ता का शुरू समय होगा जाएगा। 24 के बाद। मानवर एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपसे, विनम्रता पूर्वक। राम मंदिर पे ऐसा भ्रम पैदा किया कि न जाए लोग। राम मंदिर 22 जनवरी को भी बहुत से लोग गए, मैं तो कई बार गया हूं, जाता भी रहूंगा, किसी को रोका भी नहीं गया, लेकिन एक भ्रम फैला दिया गया। पर एक चीज कहना चाह रहा था, फिर वही हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते वो भी अवध के कह रहा हूं, उसकी पूजा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, तो पुरोहित लोग करते, पुजारी करते। वो लोग क्यों पहुंच गए जिनका कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं था? और एक बात और कहूं, कोई अपने ऊपर न ले, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, विधि विधान से जितना ब्राह्मण होने के नाते मैं जानता हूं,
जब शिलान्यास हुआ था इसलिए दीक्षित जी ने किया था कि उनकी पत्नी उनके साथ थी और किसी की पत्नी नहीं थी वहां। यहां भगवान राम ने जिनका मंदिर बना है, उन्होंने भी मंदिर की जब पूजा जिनकी हम कर रहे हैं, यज्ञ किया था, तो मां सीता की प्रतिमा बगल में बनवा के रखी थी। मानवर हम सीता को ढूंढते रह गए, मुझे कहीं सीता नहीं दिखाई। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत और नियत दोनों खराब। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बाद मर्यादा बार बार जो आपने भंग की है, मानवर दुखी मन से उसकी निंदा भी करता हूं मैं, कि आपने चुनाव के लिए भगवान राम को मत पेटी पर रख दिया। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। बन जाने देते पूरा मंदिर नवंबर दिसंबर में। आपकी पार्टी से एक और वक्ता है, उनका समय कम हो रहा है। उनकी चिंता मुझे है, उनकी चिंता मुझे है। मैं पार्टी का डिप्टी लीडर हूं, मुझे उनकी चिंता है और आपसे आग्रह करूंगा कि उनको भी 15 मिनट कम से कम बोलने दें। ये मेरे हाथ में नहीं है, समय पहले से आपके तय हाथ है, में तो आप बहुत जानते कुछ हैं। है। प्लीज हाँ, प्रमोद चलिए, जी, हिम्मत प्लीज, करिए बस आप। प्लीज। मैं आखिरी बात कह के, मैं समझ रहा हूं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, इधर जो बैठे ये भगवान राम के पुजारी और उधर जो बैठे हैं वो भगवान राम के व्यापारी हैं। भगवान राम को व्यापारी मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं। मानवर इन्होंने बार बार, हरनाथ जी अब जाने वाले हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम भगवान राम की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्राण दे सकते हैं, और ये वो हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्राण लेते हैं। हम प्राण देते हैं। हमारी पार्टी वो है जो राष्ट्र के लिए इंदिरा गांधी को राजीव गांधी का बलिदान देती है। ये वो है जो महात्मा गांधी को उनका बलिदान लेते हैं। ये उस गोष्ठे के पुजारी हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बात कह के समाप्त कर दूंगा। बैठ जाओ यार। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, भगवान राम को निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। भगवान राम को तो सब मानते हैं। इनको इतनी सद्बुद्धि दे दीजिए कि भगवान राम को ये वाद विवाद का विषय न बनाए, विवादित न बनाए। उस धर्मस्थली को धर्म रहने दे, उस धर्मस्थली को राजनीतिक स्थली न बनाए, और इसीलिए हम 22 को नहीं गए थे। मैं इन शब्दों के साथ बहुत विनम्रता से, आपने जो अधिक बोला आपकी पार्टी से जा रहा है, आपने जैसा कहा उसमें मेरे हाथ में कुछ है नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक जी, बाकी आप मौका आएगा आपको। प्लीज डॉक्टर अमर पटनायक जी। सर, आज का जो डिस्कशन पॉइंट है श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, इसको हम वेलकम करते हैं। सर, everyone would have seen when on the day of the Pran Pratishtha, Honorable CM of Odisha, Naveen Patnaik, with folded hands, praying before Lord Rama and enjoying the spiritual content of the entire ceremony. Sir, in this context, I would like to bring to the information of this House that we have Lord Sri Jagannath at Puri. He is the deity of all the entire country, definitely of Odisha. History has it that he was a tribal deity adorned by the Vils and the Sabar people as a symbol of Narayana. Another legend claims him to be Nilamadhava. He is also the god of the Jains. He symbolizes the cultural integrity of India, not just of Odisha. Now, on 17th of January 2023, under a scheme which is called Augmentation of Basic Amenities and Development of Heritage and Architecture, the ABADA scheme, the Odisha government, under the guidance of Sri Naveen Patnaik, started what is called as the Sri Mandir Parikrama project. What had not been done for 700 years.
was completed in a record time of 3 years, starting from 2021. Again, I wish to inform the House that Odisha is the only state which has a heritage cabinet. Honorable CM is committed to recapturing the glory of all heritage sites and in particular making Puri as the international cultural heritage center. A center where people and devotees from all over the world who are devotees of Prabhu Jagannath will come over there. So as a part of the project, the entire idea has been to increase the spiritual connect between the devotee and the Lord, devotee and Prabhu Jagannath. What has been achieved in this process is to allow the pilgrims not to have the basic amenities, and once they have the basic amenities, to enjoy the spiritual glory of Lord Jagannath in his full glory, in all the components of the temple in its full glory. For example, sir, for many years, those who have visited Puri would not have seen the Meghnad Pacheri, the Meghnad wall, the wall that surrounds the temple. Now, if they go, I take this opportunity to welcome you, sir, to give this nyota to you and to all members who are present here, who are watching this, to come and see Puri in its current splendor, in its current grandeur. You will see the Meghnad temple, you can see the flag, you can see the deities, you can sit in a place and meditate. Now, this was not possible earlier. All this has been possible because of the spiritual monk in politics, that is our Chief Minister, Sri Naveen Patnaik. Therefore, it is not just Puri which has been changed, which has been transformed. It is even Lingaraj temple in Bhubaneswar, which is one of the oldest temples. In fact, it is older than Puri, of Lord Shiva. That is also undergoing transformation. This entire process is happening under a scheme, under the direction of the Heritage Cabinet of Odisha, which I said is nowhere there probably in the country. Why I say this is that the spiritual content in any political sphere has to be seen as a service to the people. As Prabhu Jagannath says, that if to his bhakta, he is always available to his devotees, that I am there for the devotees. I would want his welfare. And keeping that in mind, RCM went ahead with this particular exercise, and this is happening in all the important temples and where gods and goddesses are there in Odisha, whether it is in west, whether it is in east, whether it is in north, whether it is in south, whether it is in Mayurbhanj, whether it is in Kalahandi, whether it is in Sambalpur, or whether it is in Bhubaneswar or in Puri. Therefore, while I support this discussion, I would once again welcome everyone to visit Puri and have a darshan of the Lord of the Universe, Mahaprabhu Jagannath. Thank you so much, sir. धन्यवाद डॉक्टर अमर पटनायक जी. माननीय डॉक्टर के केशव राव जी, प्लीज. Please take your seat. No, I am going as per record. के ऊपर ये राम मंदिर बना है, इसलिए सीता माता वहां बिल्कुल थी, दिखी नहीं वो अलग बात है, उनको हम सबको दिखी. धन्यवाद. माननीय डॉक्टर के केशव राव. Please, lest I am misunderstood, let me make it very clear. क्योंकि लक्ष्मण साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने ये लाया है, उनको बता रहा हूँ. Unnecessarily we have brought Ram into political controversy now. Everybody loves him. Everybody has Ram in his heart. Everybody had Ram in heart before 22nd January also. Everything was going on. आपके भद्राचलम में भी जो था वहाँ जाके देख. लेकिन आज हम लोग ये डिस्कशन करके, what is this discussion 176? मेरे भाई से पूछता हूँ कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या थी. अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस कंट्रोवर्सी लाने के लिए राम के ऊपर 2 त्रिवेदियां लल्ली है, ठीक है, उनकी एक डिस्कशन होगी. लेकिन लेट मी टेल यू, इफ राम यू आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, इट इज नॉट हिंदू मुस्लिम, इट इज हिंदू वर्सेस हिंदू.
Let me tell you, as the other day I said, I am not allowed into your houses. None of your families allow me to touch your food. No, you don't allow me to touch your water. But yet, I am myself a great devotee. I go. हमारे हर गांव में एक छोटा मंदिर होता है. हमारे गांव में हमारा एक मंदिर होता है, वो विलेज मंदिर होता है, विलेज गॉड होता है. ऐसा नहीं कि नहीं है, लक्ष्मण साहब को मालूम है. तो हम लोग वो भी बात नहीं है. हमारी इतनी आज अगरचा आप अयोध्या की बात करते हैं, अगरचा अयोध्या को आप ये कहते हैं कि बहुत बड़ी आर्किटेक्चर है, आके देखिए. ठीक है, आर्किटेक्चर